welcome to all my dear students. Today we will going to start with one of the central tendency. In the last video, you have understand the concept of mean by all the three methods. Now today we will going to understand the one more concept. Now that concept is known as the concept of the median. You already have heard about the concept of the median in standard 9. The median is nothing but the positional average, the middle value of the observation. So now in the 10th standard, the question is of the this one. The question will come in this form of the class interval form. The in 9th standard we have understand the concept in the list form. The data was there was very फ्यू मतलब बहुत ही छोटा डाटा था. यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड में हम उसको देखेंगे इन अ concept of the class interval. Now I will going to start with this question which I have already written for you. Now look at to this question. Now find the median of the following data. Now what are these? This is nothing but the marks obtained by number of students. Okay. Now what is the class interval is given out here? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and like that. So what information is given from this question is that suppose the test was conducted of how many marks? 60 marks. Okay, now what we have to do, we have got that the number of students which have scored in the range of 0 to 10 are is nothing but 6. Then 10 to 20, the number of students are 9. Like that, the distance is being maintained. Like that, the interval is being maintained. So we have to find that the middle value. How much the middle value out of 60? What is the median of the scoring is there? Where is the segregation of the data is where? So for this starting with the median, now what we have to do, we have to make one table. What we have called is the class interval. This you have already done in the concept of mean. Okay, तो चलो हम इसका टेबल बना लेते हैं क्लास इंटरवल का. चलो, now what is the first class interval? 0 to 10. Okay, 0 to 10. Then the next is 10 to 20. Like that we will going to increase with this. 20 to 30. Okay, then 30 to 40. The next is 40 to 50. Just copy paste. You don't have to do anything else. 50 to 60. Okay, now in this way you have to just copy paste with the class interval. Now what is the next one is the number of students. The number of students is nothing but the frequency. Number means the frequency. Frequency क्या है? चलो उसको देख लेंगे. Now what is the frequency out here? Is the number of students. So what is the frequency for the first class interval? 6, then 9, then 14, then 12, then 19, and which is the last one? The last one is 10. Now in the concept of the mean, we have seen so many observations. Now here we don't have to tackle out so many observations. We have to just deal with one of the observation. That observation is known as summation of Fi. What is this? Summation of Fi. So this one is nothing but the cumulative frequency of the all the classes. Now we have to add with the frequency. Now the first frequency is 6. What is the frequency? First is nothing but the 0. So we will just add with the first number. So there is nothing to add. What will be the 6 plus 0? 6. Then likewise you have to add all the frequency. Now you have to add this 6 with this 9. Now what will get? 9 plus 6. What will get? 15. Like that 15 you have to add with 14. Now this will become what? 5 plus 4 9. 1 plus 1 2. Same way, now add this, carry 1. Now this will be turn out to be 41. Now this will again you have to add with 19. 0 carry 1 turn out to be 60. And the last nothing but 70. Okay. Now what you have got it from all this, cumulative of frequency. This last should match up with the sum of all the frequency. Now we will just add with this, and while adding we'll just see that whether we have got the correct value or not. 70. चलो तो हम इसको ऐड करते. 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 15. What will be this? 15. Then 15 and 6 will turn out to be 15 and 6 21. 21 and 9 concept of finger concept. 1 and 9 10. तो कितना हो जाएगा? 15 और 6 21 और 9 30. Carry 3 then 4 5 6 7. So yes, this 70 and this 70 should match up. Are you getting it? Now that's it. Now you don't have to create any other formula
for this. Now the next is what? Now you have to find out the median. So we have to find out the median. अब हम मीडियन को देख लेंगे. तो मीडियन क्या है? तो मीडियन का जो फॉर्मूला आता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, then the bracket is created. What is the bracket? N minus 2 minus CF upon F into H. Now we will first understand what all these यहाँ पे जितने abbreviations दिए, what is the meaning of all these abbreviations, what exactly the meaning by L. L is nothing but the lower limit of the frequency of the median class. Okay, then next is what? Suppose n is what? Total number of frequency. Got it? Now what is the CF? CF is nothing but the frequency. Which frequency? Cumulative frequency. Which frequency? Cumulative frequency. Cumulative frequency means the tables in which we have added the frequency. The cumulative frequency of which class? Of preceding class. Preceding class मतलब preceding class means preceding class of the this one median class. Then last is nothing but H. H is nothing but known as the width of the class interval. Width or the height of the class interval. What the class interval is all about. तो चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट है कि हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास. तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे? n कितना आ रहा देख लेंगे हम. What is n? n amounts to be 70. तो what will be n by 2? n by 2 कितना आ जाएगा आपका? 35. चलो अब हम देखते हैं 35 कौन से हमारे मीडियन क्लास में आता है. तो this इसको देखो, ये वाले क्लास में आ रहा है क्या? ये 6 छोटा है. 15 में आ रहा है क्या? नहीं, छोटा है. 29 में आ रहा है क्या? 35 नो. इसमें आ रहा है. किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है. तो दिस विल टर्न आउट टू बी योर मीडियन क्लास. आर यू गेटिंग इट? अब हमको क्या करना है? अब हमको एक कंसेप्ट को जब हम समझेंगे तो वी हैव टू ओनली कंसीडर, हम यहाँ पे की बना देंगे. क्या बना देंगे? हम एक की बना देंगे. तो ओनली दिस मच इज बीन यूज इन द मीडियन क्लास. आर यू गेटिंग इट? ओनली इतना ही पार्ट हमको यूज होएगा. किसमें? टेबल में. पूरा नहीं यूज होएगा. देखो कौन कौन सा, यहां से देखो, ये पूरा जो टेबल आएगा लाइक दैट. आर यू गेटिंग इट? तो इतना ही हमारे टेबल में, हमारे जो टेबल है उसमें सिर्फ हमारे इतना ही आएगा. ये जस्ट लाइक अ कंसेप्ट ऑफ की मैंने आपको बता दिया. देखो एक प्रकार का की बन गया. ये क्या बन गया? की बन गया. तो आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यूज वहां पे पुट अप करने. आपको पूरे टेबल्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है. सर कैसे बनाए की, एक बार और बता दो. तो यहाँ पे हमने क्या किए थे? कैसे पहले पूरा हमने मीडियन क्लास बनाए थे. फिर यहाँ से ये वाला जो क्लास है इसको भी हमने की में ऐड कर दिया था. और ये जो थी बॉर्डर, इसको हमने मिटा दिए. Only this value is come in the role to find the median. चलो अब हम मीडियन को पता लगाते हैं. क्या रहा मीडियन? We have write it down the formula median. सबसे पहले क्या आएगा? L. L stands, what is mean by L? Lower limit of the median class. So where is my median class? This is my median class. So this is my lower limit, this is my upper limit. Which is my lower limit? 30. Which is my upper limit? 40. What I will write? 30 plus bracket. What is n by 2? n by 2 क्या रहा आपका? 35. n by 2 क्या रहा आपका? 35 माइनस क्या करेंगे? मीडियन क्लास के पहली वाली क्लास. प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, प्री. ठीक है, तो पहले वाले क्लास. तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 29. तो यहाँ पे व्हाट वी विल राइट डाउन? 29. देन इसके बाद क्या रहा हमारा? 35 अपॉन. तो विल राइट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कौन है? मिडिल क्लास कौन थी है? फ्रीक्वेंसी कौन आ रही है यहाँ पे? मैचिंग अप हो रही है 12. तो व्हाट वी विल राइट डाउन हियर? 12. व्हाट इज द क्लास इंटरवल की जो हाइट है? देखो कितने कितने से बढ़ रहा है क्लास इंटरवल. बड़ा माइनस छोटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो क्लास इंटरवल है वो कितने का है? 10 का है. कितने का है? 10 का है. आ रहा समझ में आपको? चलो अभी इसकी वैल्यू पुट अप करो. अभी जो मीन में हमने किए थे कि 30 को वी हैव नॉट मेक अ पार्ट ऑफ इट. 30 को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो व्हाट इज 35 minus 29 टर्न आउट टू बी 6 अपॉन 12 into 10. Simple हो गया एकदम कैलकुलेशन. So what we will do? 6 ones are 6 twos are. Getting it? Nothing to worry about that. 2 ones are 2 fives are. तो पूरा कैंसिल आउट करके क्या आ रहा है? 30. और ये पूरा क्या आ रहा है? 5. तो मीडियंस अमाउंट्स टू बी 35. समझा? मीडियन कितना आ गया फिर आपको? अभी मीडियन आ गया 35.
एकदम इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगेन ये आ गया हमारा, अगेन आई टेक द रीकैप ऑफ व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू। तो चलो हम एक बार फिर से बहुत अच्छे से पूरा रिकैप कर लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मीडियन क्या है। सबसे पहले हमको पता है कि मीडियन इज नथिंग बट द पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब अगर ऐसे सबको अगर हमने खड़े किए तो वो ऑब्जर्वेशन की मिडिल वैल्यू क्या आएंगे। तो मिडिल वैल्यू हमने लास्ट ईयर 9th में हमने देख लिए थे। चलो हमने 10th में क्या हो गया, क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो चलो देख लेते हैं ये टोटल मार्क्स कितने लिए का, कितने मार्क्स का टेस्ट है, 60। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 35। तो ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 30 से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब जो एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, जैसे मिडिल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 60 की, 60 का आधा 30। देखो ना जीरो से लेके पर कहां तक आ रहे स्टूडेंट्स, कहा ले रहे 35। तो अच्छी मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है। तो 0 to 10, 10 to 20, ऐसे 60 मार्क्स का क्लास था, उसको उन्होंने कैटेगराइज किए कि 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है 6, 10 to 20 के बीच में कितने 9। तो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे। टेबल हमने बनाया, क्लास इंटरवल बन गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फिर जब उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। समझ में आपको। अब ये वाला जो टेबल है ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्यूमुलेटिव, टू ऐड, क्या बोलते हैं हम उसको, टू ऐड, क्यूमुलेट करना, जमा करना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या था, इसके पहले कुछ था क्या, नहीं। तो 6 के सामने क्या आएगा 6। अब देखो 6 इसके साथ ऐड होते जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको, ऐसा ऐड करते रहना है। तो जब आप उसको ऐड कर रहे हैं तो मेक योर आईज टू गो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। तो फिर आपको फटाफट फटाफट आप ऐड करेंगे, आपको मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन यूज करना है, मतलब आंखों से मैथ्स को सॉल्व करना है। आप अपने आईज को ट्रेन करो। देखो फिर मैं इसको इधर ला रहा है, ये इधर 6 and 9 15, 15 plus 14 29, 29 and 12 41, 41 और 19 60, 60 plus 10 70। एकदम फास्ट करना, आपसे एरर भी नहीं होगा। और लास्ट में अब आपने जो यहाँ पे 70 आए, इन सब का टोटल आप निकाल के देख लो, ये 70 और ये 70 मैच हो रहा है, देन इट इज राइट। इट इज एडवाइजेबल, सुन लो क्लास में क्या बोल रहा हूँ, इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको बाद में चेक करना, पहले इसका सीएफ निकाल लेना। इसका सीएफ टोटल कितना आ रहा है 70, फिर बाद में जब इसका निकालेंगे तो इसका कितना आना चाहिए 70, देन देयर इज अ चांसेस दैट यू माइट हैव नॉट कमिटेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक आउट हियर। अब हमने इसका टोटल एन निकाले, व्हाट डू मीन बाय एन, एन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो n by 2 कितना आ जाएगा 35। अब हम इसको देखते हैं 35, देखो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, जिसमें भी आएगा वो उसकी मीडियन क्लास होगी, समझा। पहले वाले में देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 6 छोटा है। 15 आ रहा है क्या 35 के, इसमें नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। 29 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, छोटा हो रहा है। देन नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 41, व्हाट इज द नेक्स्ट वन 41। तो ये हो गया हमारा एक मीडियन क्लास। आर यू गेटिंग इट। अब क्या करेंगे, ये पूरा टेबल बन गया। अब हम इधर आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे ये L क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द L, L इज नथिंग बट द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। चलो इधर आओ, मीडियन क्लास कौन है 30 to 40, ये क्या हो गया 30 क्या होगी लोअर लिमिट, 40 क्या होगी अपर लिमिट, तो ये हो गया 30। देन आता है N, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हैं 70। CF का पता क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास किसकी मीडियन की। तो ये मीडियन की कितना है 40, इसके प्रीसीडिंग के पहले क्लास कितने आएगी 29, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 29। उसका क्या रहा H, H इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द क्लास, कितने से उसका विड्थ बढ़ रहा है, कितने से उसका हाइट बढ़ रहा है, कितने से उसकी वैल्यूज बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो इसको और इजी करने के लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने इसे की बना दिया। क्या बना दिया ऐसी की, ये देखो ऐसा लिया, फिर यहाँ पे जो मिडिल क्लास थी ये वाली जो लाइन थी इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने ऊपर लिया ऐसा, और ये बन गया की। दिख रहा आपको की अलग से, कैन यू सी दिस की, ये आपको की दिख रहा अच्छे से, बस आपको इतनी की ही जरूरत पड़ेगी। अब आ जाओ इधर फॉर्मूले पे, लोअर लिमिट 30, और फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या n by 2, n by 2 7, n कितना है 70, तो n by 2 कितना आएगा 35, 70 का आधा। देन उसके बाद क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास देखो कौन है 41 के ऊपर कौन है 29, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 29। उसके बाद क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ, उसके बाद क्या f, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, दिस वन। तो f इज द, दिस वन इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो चलो अब हम इसको f निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास कितनी आ गई है 12, कितने आ गए 12, तो राइट इट डाउन हियर 12। व्हाट इज दिस, हाइट इज द विड्थ ऑफ द क्लास, वो कितना आ गया 10। अब जो मीन के क्लास में भी हमने सीखे थे कि 30 को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 35 माइनस 29 टर्न आउट टू बी 6 अपॉन 12, 6 1 6 2 2 1 2,
5 10 by 2 is 5. So 30 plus 5, medians turn out to be 35. So hope all of you that you have understand the this is the nothing but the basic concept of the median. तो आपको इस क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं आया होगा समझ में, कोई डाउट्स है तो आप उसमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम जा रही है, तो अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस लेंगे. And once again, I'm thanking to all of you for giving me the overwhelming response to my channel, and I'm thanking to all of you. Thank you, students. Thank you.